राहुल, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए बिकॉज़ क्या हुआ आपके साथ हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जो पड़ी? 11 दिसंबर 2017 को मुझे एक पैरालिटिक अटैक आता है। मेरा फेस पूरा टेढ़ा हो गया था। एक साइड से हाँ पैरालाइज़ जी, लेफ्ट साइड से मैं पैरालाइज हो गया था। मेरा सलाइवा नहीं रुक रहा था, तो मम्मी इतनी डर गई थी कि मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही। सीसीयू में एडमिट होने के बाद मेरी पल्स रेट 13-14 था। माय गॉड! हाँ, तो उसके बाद बट डर लगा आपको? हाँ सर, डर इतना लगा कि अक्सर मैंने ना अपनी फैमिली में ना किसी को काम करने नहीं दिया। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो एक तरीके से मेरी फैमिली ना दिव्यांग हो जाएगी। जी। क्योंकि कुछ भी मेरे यंगर ब्रदर को ये सामान खरीदने तक के नहीं पता था सर। तो वो तो पूरे घर का बोझ आप ही उठा रहे थे। बोझ नहीं कह सकते सर, जिम्मेदारी ज़िम्मेदारी। जी। तो फिर लगने लगा कि अभी जीना चाहिए। सुनैना, what's an organ transplant and why is it so important? Organ transplants are important because there are almost around 5 lakh people every year who face organ failure of some kind. So that's why organ donation obviously becomes very important. If you have organ failure, you can get it from two places, right? You can either get it from someone who has died. मृत्यु के बाद Yeah. किसी के organ आप ले सकते Right. हैं। तो उसको हम deceased donation बोलते हैं, after death. And you can also kidney and liver you can take from somebody who's still alive. A match. A match, yeah, Right. somebody. So in India, the law is that if you need a transplant and you want a living donor, it has to be someone within your family. It has to be a near relative. And if you don't have that option, then you have to go to a hospital, go on to a waiting list, and hope that at some point your name comes up and you can get the transplant. Welcome to Health Mantra. I'm Arjun Bhagat and we have a very special show for you on organ donation. और आज हमारे साथ है राहुल प्रजापति, who is a heart transplant recipient. Rahul, thank you so much for joining us. Rahul had a heart transplant. 2018 में आपका heart transplant हुआ. जी And since then, you've been working on your fitness, you've been working on nutrition, and you even represented India in the World Transplant Games, which were held in Australia in 2023. So, welcome to Health Mantra. And we have the CEO of Organ India, Sunaina Arora Singh. Thank you, Sunaina, for joining us. And of course, let me begin by asking you, what's an organ transplant and why is it so important? So Arjun, thanks for having me here. And organ transplants are important because there are almost around 5 lakh people every year who face organ failure of some kind. So it could be kidney failure, liver failure, heart failure, lung failure. You can even transplant your pancreas and your small bowel. And if these people have any of these failures, then they will need an organ transplant to be able to survive. So that's why organ donation obviously becomes very important. If you have organ failure, you can get it from two places, right? You can either get it from someone who has died. So that's what we call मृत्यु के बाद Yeah. किसी के organ आप ले सकते Right. हैं। तो उसको हम deceased donation बोलते हैं, after death. And you can also kidney and liver you can take from somebody who's still alive. A match. A match, yeah, Right. somebody. So in India, the law is that if you need a transplant and you want a living donor, it has to be someone within your family. It has to be a near relative. And if you don't have that option, then you have to go to a hospital, go on to a waiting list, and be on the waiting list of that hospital, and hope that at some point your name comes up and you can get the transplant. So, let's talk about it a little bit more as we go along. Rahul, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए because, to me, to so many other people, we keep hearing about, हम लोग सुनते हैं heart transplant. आपका तो heart transplant is a very sophisticated surgery. तो क्या हुआ आपके साथ जो आवश्यकता पड़ी कि मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जो पड़ी? जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो 2012 में मुझे एक हृदय की बीमारी हुई जिसका नाम डीसीएमपी था। और डीसीएमपी रेयर पीपल्स में मिलता था किसी-किसी में। और जैसे कि मैं यंग एज का था तो उसमें मिलना काफ़ी वो था, डॉक्टर्स के लिए भी अचंभे की बात थी और मेरी फैमिली के लिए भी। तो उसमें सर एक्चुअली क्या होता है, हार्ट के ना धीरे-धीरे मसल्स वीक होते हैं
और तो DCMP का पूरा लेट मी जस्ट गिव यू द फुल फॉर्म. इट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. जी और इसमें बेसिकली हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो जो आपका दिल है वो उतना पंप नहीं कर सकता, ऐसा जो खून जिससे हम लोग सब जी जीवित रहते हैं. एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी वीक हो जाती, एनर्जी खत्म हो जाती है लगभग, और वो दवाइयों के सहारे से ब्लड को पंप करता है। जी. तो 2012 में मेरा ये डायग्नोज हुआ, और डायग्नोज होने के बाद मैं एम्स में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया। ऑल इंडिया मेडिकल सर। इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रीटमेंट शुरुआत हुई वहाँ. और काफ़ी मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मुझे अच्छे डॉक्टर मिले, और उनकी गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी, जिनकी वजह से मैंने रिकवरी भी जल्दी कर ली। लगभग 2012 में मैं अगस्त में गया था आप एम्स। कितने साल के थे? हाँ, मैं 16 प्लस हो गया था, पर लेकिन 17 नहीं हुआ था, और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। एग्ज़ाम के टाइम पे ही मुझे एक फ़ीवर आया, और नॉर्मल फ़ीवर की तरह मैंने भी लिया एक्चुअली। काफ़ी यंग था और एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी करता, तो पता नहीं चला, और नॉर्मल क्लिनिक में गया और उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन्स दी। फ़ीवर था तो फ़ीवर उतर गया, और फिर धीरे-धीरे पता चलने लगा कि कुछ तो है। और मैं अपने गाँव में था उस टाइम, जैसे कि मैं बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ बागपत उत्तर प्रदेश से। जी. तो वहाँ के डॉक्टर भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने पहली बारी में ही मेरी बीमारी को पहचान लिया, और उन्होंने मुझे दूसरे दिन इकोकार्डियोग्राफी के लिए बुलाया था। बाकी नॉर्मल डॉक्टर उनको पता लग गया कि ये दिल से कुछ हाँ जी, रिलेटेड जी, प्रॉब्लम है आप. जी। एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट डे जब मेरा 2 या 3 टेस्ट किए, और उनको कोई भी कुछ भी नहीं मिला रिपोर्ट्स में, तो सेकंड डे उनको डाउट हुआ, और उन्होंने मेरा इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट किया, और उसमें एकदम डिक्लेयर कर दिया कि आप DCM पेशेंट हैं, और आपका ट्रीटमेंट तो यहाँ पे हो जाएगा, पर लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल पाएँगी, तो आप एम्स के लिए ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं किसी से बात करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। और मैं 2012 में अगस्त में एम्स में आया। लगभग 2 से 3 महीने में मुझे काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली, और तब कोई इंटरवेंशन नहीं थी, खाली दवाइयाँ देनी शुरू कर दी. हाँ, यस, दवाइयाँ दी कुछ टेस्ट के बाद, और रिकवरी ऐसी थी कि साँस जो फूलता था वो ठीक हुआ, और नॉर्मल काम करने लगा अपने। पर डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया कि आप ना रेगुलर कॉलेज ना करें, क्योंकि ट्रैवल करने में काफ़ी साँस फूलता था उस टाइम पे। उसको रिकवर होने में लगभग 1 से डेढ़ साल लगा, और मैंने इसी बीमारी के दौरान अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी किया, होटल मैनेजमेंट भी पूरा किया, और जॉब भी करने लगा। और ये लगभग दवाइयों से इतना रिकवरी हो गई थी कि मैं ठीक हो गया था। मैं 2017 में जॉब करता था अशोक होटल में एज़ ए शेफ़। जी. तो उस टाइम पे मुझे 11 दिसंबर 2017 को मुझे एक पैरालिटिक अटैक आता है, जो कि मेरा छुट्टी का दिन था, और मैं घर पे था, और जस्ट मम्मी के साथ ब्रेकफ़ास्ट करके, और मैंने बोला ठंड ज़्यादा है, तो मैं सो गया। लगभग 15 मिनट के अंदर मुझे एक पैरालिटिक अटैक आता है, जी. और जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी नहीं पता होता कि अटैक या स्ट्रोक क्या होता है। जैसे मुझे नहीं पता था, मेरी फैमिली को नहीं पता था। और जब उसके रिएक्शंस देखने को लगे, मेरा फेस पूरा टेढ़ा हो गया था, और एक साइड से हाँ पैरालाइज. जी, लेफ्ट साइड से मैं पैरालाइज़ हो गया था, और जिसमें कि मेरा सलाइवा नहीं रुक रहा था, और सलाइवा निकले जा रहा था। तो जैसा कि मम्मी काफ़ी डर गई थी, इतनी डर गई थी कि मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही। और मैंने पैरालिसिस चलते-चलते अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, और एकदम से मेरे फ्रेंड्स आए और सीधा एम्स लेके आ गए। और जैसा कि एम्स जाने से पहले मेरे डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कहीं पास से क्लिनिक लेके जाइए और हमारी बात करा दीजिए। उन्होंने कुछ भी बात की होगी या पूछा होगा मेरे बारे में, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप सीधा एम्स आ जाइए। और लगभग 1 घंटे में हम एम्स आ गए। अच्छा ये रहा कि जाते ही उन्होंने सारा कुछ प्रिपरेशन किया हुआ था। जैसे कि मेरा तो 2012 से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो लोग तो मुझे अच्छे से जानते थे। सो टीम थी वहाँ, यस सर। और वो आपका पूरा केस हिस्ट्री जानते थे, पेपर्स बने हुए थे आप. जी, जी। वहाँ पे सर थोड़ा-सा टाइम इस चीज़ में लगा कि ये डिसाइड नहीं कर पाए इमरजेंसी जो भी डिपार्टमेंट होता है, कि इसको कार्डियोलॉजी में भेजें या न्यूरो सर्जरी में। राइट. तो न्यूरो सर्जरी वाली टीम आई, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि नहीं, ये कार्डियोलॉजी में आप भेज सकते हैं। एक्चुअली वो जो स्ट्रोक था वो मेरी एक्टिविटी की वजह से रुक गया था, और अगर मैं वैसा ही रहता या सोता ही रहता, सोते-सोते आया था मेरे को पैरालिटिक अटैक। राइट. तो
लगभग आधा इंच का एरिया हुआ ब्रेन के अंदर जिसमें कि वो ब्लड फैला, और बाकी बाद में ठीक हो गया। जी। और एम्स आते ही मैं फिर सीसीयू में एडमिट हुआ। सीसीयू में एडमिट होने के बाद मेरी पल्स रेट अराउंड 13-14 था। माय गॉड। हाँ, काफ़ी लंबी-लंबी साँसें थी। उस टाइम सर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद नहीं बच पाऊँगा। और आप कॉन्शियस थे तब? नहीं सर, कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस नहीं था, कॉन्शियस था, सब कुछ पता चल रहा था। बोल कुछ नहीं पा रहा था एक्चुअली, मेरी टंग भी मूव नहीं कर रही थी। Oh gosh. जी। सो एक बार आपको डॉक्टर्स ने स्टेबलाइज कर लिया और सर्जरी हुई आपकी, जो खून जो नो, पसंद है मेडिसिन दे करके उसको डाइल्यूट करा। एक्चुअली उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में वो एरिया पता चला कि कहाँ तक फैला है। और अच्छी बात ये है कि जनरल पीपल्स को, मतलब आम जनता को या किसी को भी ये नहीं पता होता कि पैरालिसिस में क्या करना चाहिए। जी। एक्चुअली इतनी नॉलेज मेरी फैमिली को भी नहीं, किसी को भी नहीं होगी। क्या करना चाहिए? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बॉडी अनकॉन्शियस है, सुन हो जाती है, टच भी फील नहीं होता सर। जी बिल्कुल। और कई कई बार रगड़ने लगते हैं या कुछ भी करते हैं, और नहीं पता है किसी को, वो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो वेन्स है ना हमारी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है मसाज करने से, किसी भी तरीके की। ये नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि 6 घंटे के अंदर अंदर आप लोग एक हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगता है जो रिकवरी करता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं लकवा, हाँ लकवा जी, लग गया। लकवा। लकवा। लगभग पैरालिसिस सेम ही है सर। अच्छा, जी। जी। और 6 घंटे का टाइम बताते हैं डॉक्टर्स लोग भी कि एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो क्रिटिकल पीरियड है। जी, जी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि कब डॉक्टर्स ने बताया कि लुक ये हार्ट से रिलेटेड है और अब आपका जो हार्ट है वो ऐसे फंक्शन नहीं कर रहा है एंड वी नीड टू डू अ हार्ट ट्रांसप्लांट? सर मेरी लाइफ का जो टाइम था सर, एक ही रात में सब कुछ डिसाइड हो गया। डॉक्टर्स 11 के नवंबर या 11 दिसंबर? दिसंबर, जी। उसी दिन पता चला कि मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। क्योंकि सर जो सीसीयू में डॉक्टर्स थे उनको नहीं पता था क्या ट्रीटमेंट चल रहा है क्या है, और दिन संडे का। जी। और डॉक्टर्स भी छुट्टी पे थे, मेरे डॉक्टर्स भी छुट्टी पे थे, और कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, फ़ोन नहीं था सर मेरे पास। किसी तरह मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, वो पेरेंट्स जानते थे डॉक्टर्स को, उन्होंने फ़ोन किया। फिर फ़ोन आया तो टीम को बताया गया कि ये प्रोसीजर अपनाइए, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, तो रिकवरी इतनी हुई कि 20 से 22 हार्ट बीट थी मेरी। और नेक्स्ट डे से मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि हार्ट ट्रांसप्लांट ही होना है ज़रूरी। बाकी उन्होंने बोला कि हम लोग आपको 1 हफ़्ते के लिए घर भेजेंगे, और आप देखते हैं दवाइयाँ क्या आप कर। कब कर गए थे? हाँ सर, वो मेरी हार्ट बीट आप बोल पा रहे बोल पा रहा था बोल तब। पा रहे थे? जी, 1 दिन के अंदर इतनी रिकवरी हो गई कि मूवमेंट आ गई, बस टच फ़ील नहीं हुआ। नहीं, किसी को भी अगर आप बताएंगे कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होएगा नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब सर मेरे डॉक्टर्स मेरे इतने क्लोज़ हैं कि उन्हें पता है कि वो बताएँगे जो भी मैं मान लूँगा। जी। उन्होंने बताया कि आपका जो हार्ट है ना, वो रिकवरी भी नहीं कर पाएगा। एलवी फंक्शन डिसऑर्डर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर, वो पार्ट स्टॉप हो गया था। जी। और काफ़ी कोशिशों के बाद वो नहीं मूव कर रहा था। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि ये आपके वर्कअप करेंगे हम लोग, आप अपनी फैमिली में बात कर लीजिए, बड़े जो भी हैं उनसे पूछ लीजिए, और पूरी फैमिली के कंसेंट के बाद ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और अगर आपने भी मना कर दिया तो भी रोक देंगे। जी। तो उसके बाद पर सर, डर लगा आपको? हाँ सर, डर लगा। और मतलब डर इतना लगा कि एक्चुअली कुछ चीज़ें इतनी इमोशनल हैं, अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी होगा बड़ा, सभी की फैमिली में होता है सर। जी। एक्चुअली सर मैंने ना अपनी फैमिली में ना किसी को काम करने नहीं दिया। मेरे पापा ऑफिस जाते थे और घर का सारा काम मैं खुद करता। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो एक तरीके से मेरी फैमिली ना दिव्यांग हो जाएगी। जी। क्योंकि कुछ भी, मेरे ब्रदर, यंगर ब्रदर को ये सामान खरीदने तक के नहीं पता था सर कि दुकान से सामान लेना है, तो मतलब पूरे घर का बोझ आप ही उठा रहे थे? बोझ नहीं कह सकते सर, जिम्मेदारी जिम्मेदारी। जी। और फिर मुझे फील होने लगा यार मैंने तो बहुत गलत किया, अपने भाई को भी बाहर निकलने देना चाहिए था। तो फिर लगने लगा कि अभी जीना चाहिए, कुछ इच्छा जागी। और मेरे पापा सामने खड़े हुए थे सीसीयू में, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे को, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, सब कुछ है, मैं भी तो साथ में खड़ा हूँ।
तो काफ़ी हिम्मत बनी और सर उन्होंने भी, परिवार ने भी बहुत हिम्मत दी। हाँ जी, जी। और और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि जो हार्ट ट्रांसप्लांट का है यूजुअली, सुनैना, जो हार्ट ट्रांसप्लांट टेक्स प्लेस इन इंडिया, आई बिलीव 1300 हार्ट ट्रांसप्लांट्स हुए हैं इंडिया में. हाउ डज दैट हैपन? What is the procedure to get a heart transplant? I can just imagine it must be a very expensive exercise. बहुत महंगा होएगा, especially in private hospitals. And the conversation you and me were having was that the majority of transplants that take place are in private hospitals. So the majority of transplants that take place overall, I would say about 85% So all or so, all transplants take place in private hospitals. Private hospitals are very well equipped. They have great equipment. They have great surgeons. They do happen in government hospitals, like AIMS is a great place. So government hospitals are doing it, but they are way lesser than private. So even our chairperson, our former chairperson, Mrs. Kirti Parashar, she herself also was told in 2012. That's of Organ India, which is Yeah. an NGO Yeah, that you so head. Organ India was born actually because it's an initiative of the Parashar Foundation. And Organ India, its the full form is Organ Receiving and Giving Awareness Network. Awareness. Yeah. So we started it because the chairperson herself was told that you need a heart transplant. And at that time, in 2012, there was no one organization you could call to find out, how does this happen? Where does it happen? Which are the doctors who are doing it? What is the whole process? What do you do? All of that. So when she went through the whole thing, her daughter Anika, who's now the chairperson, she came up to me and said, it's difficult even for people who are well placed. It's difficult to figure out how to do it. So I want to start something, an organization that's going to help patients. So that's how Organ India started. So it started before Mrs. Parashar actually got a heart transplant. So at that time, we were told that she should go to Chennai. Because in Tamil Nadu, things were much better. They, much better organized. There were a lot of donations happening of deceased donors. So she went there. The ecosystem in Tamil Nadu is still very well. It's very good. A lot of the states in the south is very, very good. And it's picking up now a little bit in the north as well. Chandigarh is doing great. And Delhi is, it's there. We have great hospitals, great doctors. So it's picking up, but not as much. So the process, like the question was, what is the process? So you have to go, the transplant team will do the whole workup. They'll do all the blood tests, whatever tests, and they'll decide whether you're fit enough for the transplant. So first you have to be fit enough that you can actually go through the surgery. So when she had gone, she was not fit enough. So it took 2-3 months to get her to that level. Then you're put on a waiting list. So Right. each hospital, each transplant center who's doing transplant has a waiting list of various organs, heart, kidney, liver, whatever. So then they put her name on the list, I think around May of और ये 2000. क्या, ये national wait list है? Is it a systematic? Yeah, it's so all there are nodal agencies in every state, which are now called state organ and tissue transplant organizations. Right. Its health is a state subject, so each state has its own health ministry. So there is a and the- government agency also, right? National Organ and Tissue. Yeah, that was the AOPAN Organized- body Right. in India under the Ministry of Health and Family Welfare. Right. They have their So that was started in 2013-14. It became active during that time, yes. So here in every state, you have a state organ and tissue transplant Right. organization. So all the hospitals, private and public hospitals, are all the waiting lists are uploaded Right. onto their website. So they know that in which hospital, which person is there waiting for which transplant. So once you get your name put on a waiting list, then you just have to wait. You have to wait it. Yeah. So Right. yeah. So she got hers after about 5 months in December 2013, and there was a 51-year-old man who died in a road traffic accident, and his family very generously said yes when they were asked about organ donation. He was brain dead, and she got his heart. Right. So yeah. So राहुल, आप बताइए, जो आपको जो फिर क्या हुआ उसके बाद? सर फैमिली ने डिसाइड किया और जैसा कि बड़े ये 2017 की बात। जी 2017 के बाद जैसे मैं एडमिशन हुआ और मेरा वर्कअप चालू हुआ एम्स में। डिक्लेरेशन के बाद वर्कअप किया सर। तो फैमिली डिक्लेरेशन में क्या हुआ सर, पूरी फैमिली एग्री थी, मेरी दादी ने मना किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक
सभी के घरों में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो एग्री नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे का कोई ऑपरेशन हो और ऐसा ऑपरेशन हो कि जिसमें वापस आने के चांसेस 5% भी नहीं है। तो उन्होंने क्लियर डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जो रिकवरी रेट है 5% है, 3% है, जो जी, एक्चुअली ये काफ़ी डेंजरस ऑपरेशन होता है। जी। एक्चुअली उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हमारे डॉक्टर्स काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो और बाकी जो कंसेंट साइन कराते हैं उसके अंदर 5% ही होता है और ये डिसीज़न फैमिली का रहता है और कि एक्चुअली रिस्क भी रहता है काफ़ी। तो दादी नहीं मान रही थी। दादी ने बिल्कुल मना किया कि हम ऑपरेशन नहीं कराएँगे और ऑपरेशन में लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, ऐसी कुछ सोच है बड़े बुज़ुर्गों की। और और आज इतना चेंजेज़ है सर, मेरी दादी अपने एज ग्रुप में सबको बोलती हैं कि अंग दान करके जाने। बताइए, तो फिर क्या हुआ? एक बारी आपका नाम चढ़ गया उस लिस्ट जी। में, ऑल इंडिया मेडिकल की लिस्ट में, फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट। मेरे डॉक्टर ने मुझे वर्कअप कंप्लीट करने के बाद बोला कि 6 महीने, 1 साल, 3 साल लगभग 2021 तक आपको मिल जाएगा। जी, ये बताया 3 साल तक उन्होंने हाँ, वेट कर इसके अंदर मिल जाएगा आपको 3 साल के अंदर-अंदर और जैसा कि मुझे 27 से 28 दिसंबर में डिस्चार्ज किया गया था घर पे जाने के लिए। वो उन्होंने कहा था कि अब हम आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको तब बुलाया जाएगा जब आपको हार्ट मिलेगा। तो बीच में जब घर भेजा उन्होंने तो मेरी साँसें काफ़ी रुक गई थी, फिर दोबारा मैं एम्स में आया। तो एडमिशन हुआ और उसी दौरान मेरा एकदम फिट एंड फाइन किया उन्होंने। उन्होंने बोला फिर से एक बार घर ट्रायल के लिए भेजते हैं। जी, हॉस्पिटल में ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। जी। तो उस मैं दूसरा दिन था सर, मेरे को घर गए हुए हैं और मेरे को फ़ोन आता है कि भई आपके लिए हार्ट अवेलेबल हो गया है और किसी फैमिली ने एग्री किया है कि हार्ट डोनेट के लिए, तो आप आ जाइए। और इस चीज़ को सर ऑपरेट कर रहे थे सर, एक एम्स का ही ब्रांच है और वो डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था कि ऐसे हार्ट मिल गया, कितनी देर में आप लोग आ जाएँगे? सो मतलब फ़ोन आया और जी। क्योंकि इमीडिएटली करना पड़ता है, राइट? हार्ट मिला किसी। जी, एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो मुझे बाद में पता चली किसका है। नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, बाकी चीज़ें भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर नाम नहीं बताते। जी। जी, तो उन्होंने बोला कितनी देर में आप लोग पहुँच जाएँगे एम्स तक। लकीली मेरे पापा की छुट्टी थी और मेरे पापा ने बोला कुछ भी ट्राई नहीं करना है। उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया एम्स ने आने के अच्छा, लिए। 1 घंटे में बोला कि आप आ जाइए, और सब कुछ छोड़िए और सीधा यहाँ पहुँचिए और ऑपरेशन करना है जी। हमने। हाँ सर, सो द विंडो इज़ रियली शॉर्ट। It's short, yeah. एक्चुअली सर वो लोग भी इतना सोच समझ के चलते हैं कि अगर राहुल नहीं आ पाएगा तो वेस्ट हो जाएगा ऑर्गन। तो ऑर्गन वेस्ट ना हो इसलिए वो 3 से 4 लोगों को कॉल करके बुलाते हैं। जी, जो पहले पहुँच जाता है सर उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा। जी। और उसमें मैं So somebody has given Someone has donated. It's a natural resource. It's like a gift. प्रीशियस है सेल दिया है इसके लिए और हाँ जी। जी। तो कुछ भी नहीं सोचते हुए मेट्रो भी थी सर, गाड़ी भी थी, सब कुछ था आने के लिए, पर मेरे पापा मुझे बाइक से लेके गए और सर अराउंड 38 मिनट्स आप में हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए Like, आप घर से गए बाइक पे। और एक्चुअली सर हमने सारी चीज़ें सिचुएशन निकलने से पहले बता दिया एम्स में कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं। उन्होंने सर पता नहीं क्या था, ट्रैफिक पुलिस को बताया हुआ था क्या था, उन्होंने बोल दिया था कि रेड लाइट पे नहीं रुकना कहीं भी, आप जल्दी से आ जाइए। और ना हमें किसी ने रोका और एम्स में भी पहले से पता था हम लोगों के लिए कि बाइक से आ रहे हैं और डायरेक्ट हम एंटर कर गए। जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती वहाँ तक हमारी बाइक गई और वहाँ पे मुझे अ, सबसे शुरू में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो पूरा आपका जो माइंडसेट था जी। पॉजिटिव था। सर मैं आपको बताऊँ मुझे यही नहीं पता चला हमने रास्ता कितनी देर में कवर कर लिया। मेरे माइंड में कुछ एक अलग ही मूवी सी चल रही थी कि क्या होगा और पॉजिटिव तो था सर, पॉजिटिव तो अच्छा, आप पहुँचे फिर एम्स? उनका प्रोसीजर है सर, जाते आप कितनी भी तैयारी से आए हो, अपने प्रोसीजर को नहीं छोड़ते हैं। नहीं, फिर नहलाया और सब अच्छे से और बीटाडीन से 3-4 बार उन्होंने वॉश किया और मेरे हेयर रिमूव कर दिए। मेरे वो बाल काफ़ी लंबे होते थे पहले से। हाँ, तो वो हेयर रिमूव किए सारे और उसके बाद मुझे ट्रांसप्लांट रूम में वेट करने के लिए बोल दिया। ये भी मुझे सर ट्रांसप्लांट के बाद पता चला कि फैमिली ने मना कर दिया था कि हम ऑर्गन नहीं देंगे। अच्छा, जी। जो और डोनेट कर रहे थे आपको।
जी। उनकी फैमिली ने डिनाई कर दिया था सर। और एम्स से फिर से एक टीम गई उनको समझाने के लिए। जो हार्ट हमें 6 से 7 बजे के आसपास मिलने वाला था, वो 11 साढ़े 11 के आसपास मिला। और मेरा ट्रांसप्लांट, मैं 17 को एडमिट हो गया था सर। जी। तो मेरा ट्रांसप्लांट 12 बजे के 15 मिनट पे मुझे ट्रांसप्लांट रूम में लेके गए। रात को। जी, और मैंने एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड भी था। मुझे लेके जा रहे थे तो मैंने बोला कि मैं तो बैठ के जाऊँगा। तो मतलब एक्चुअली लेटने से उस टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी थी। अच्छा, तो आप व्हीलचेयर में आप ना, स्ट्रेचर पे बैठ गई थी। स्ट्रेचर पे बैठी। और मैंने नर्सिंग स्टाफ को बोला कि मेरे को एक बार टाइम और दिखा दीजिए कहाँ पे है। मैं टाइम दे के गया और सर 12:15 हो रहे थे। और और फैमिली आपकी बाहर वेट कर रही थी। फैमिली से तो सर मैं 6 बजे से मिला नहीं था और ना ही उन्होंने मिलवाया। और मैं ट्रांसप्लांट रूम में चले गए। वहाँ पे कुछ नहीं सर, वो कम से कम 14 से 15 डॉक्टर थे अंदर, कुछ नर्सिंग स्टाफ वगैरह, सारा टीम को मिला के मैं बता रहा हूँ। और रात के 12 बजे हाँ सर, ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं सारी चीज़ें जनरली पूछ रहे थे और बातें करते करते सब कुछ मुझसे पूछ लिया। और पता नहीं सर फिर आप कब में नहीं होता। एनेस्थीसिया दे दिया होगा। जी। और पर सर वो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट को पता नहीं क्या हुआ है। पर मुझे इतना पता है कि सर जिस टाइम वो मेरा रिब्स ब्रेक कर रहे थे मुझे फील हो रहा था। पेन फील नहीं हो रहा था। जी। एक तरीके से सेशन आ रही थी। सेंसेशन आ रही थी, जो झटका टाइप लगता है ऐसा लग रहा था। और वो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझसे पूछा भी, जब मैं ठीक ठाक मेरा ऑपरेशन हो गया, नर्सिंग स्टाफ आए थे, डॉक्टर्स आए। मैंने उनको बताया, कह रहे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैम ऐसा ही हुआ है। तो कह रहे हो नहीं सकता ऐसे, आपको कैसे पता ऐसा हो रहा था? मैंने कहा मैम पेन तो कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन मुझे फील हो रहा था। तो कितने कितने घंटे चला आपका? एक्चुअली मैं 12:15 पे गया था ट्रांसप्लांट रूम में और लगभग 5-7 मिनट में स्टार्ट हो गया था। मेरे सामने ही एक ब्लू बॉक्स आता है सर। जी। हाँ, उस टाइम मैं हॉस्पिटल। अच्छा, जिसमें वो हाँ, हार्ट लिया। हार्ट डोनेटेड हार्ट पड़ा। जी, जी। वो आता है, थोड़ी हलचल होती है, पता चलता है कि कुछ हो रहा है। कुछ लोग की टीम आ रही है। मेरे सामने आया और मुझे एक-एक चीज़ याद है सब। मैं जहाँ पे लेटा हुआ था मेरे बैक साइड में गेट था, वहाँ से आए थे। मैंने मूव करके देखा और उसके थोड़ी देर बाद मुझसे कुछ पूछा, मैं सो गया। और मॉर्निंग में सर मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मुझे नॉर्मल ट्रांसप्लांट रूम अलग होता है। एक ऑपरेशन थिएटर होता है, एक ट्रांसप्लांट रूम अलग है, जी। जिसमें पेशेंट को रखते हैं लगभग जब तक रिकवरी ना हो जाए। जी। तो मेरी फैमिली को मुझे दिखाया गया था लगभग 6 बजे के आसपास मुझे बाहर निकाल सुबह। दिया। जी। और मुझे तो सर होश आया था लगभग 2 बजे के आसपास, जिसमें कि मुझे प्यास लगी काफ़ी और पानी पीने का काफ़ी मन किया और वेंटिलेटर में पूरा सुखाया हुआ था। जी। जी, आप वेंटिलेटर में। हाँ, वेंटिलेटर पे ही रखते हैं सर। तो उन्होंने 2-3 ड्रॉप मुझे पानी पिलाया और अभी अभी भी आप काफ़ी इमोशनल, इतने साल हो गए हैं, जब आप बस इसके बारे में सोचते हैं। इमोशनल तो सर आप मैडम लोगों से पूछ सकते हैं। काफ़ी तब लगभग 2 साल से ज़्यादा जानती है मैम मुझे। कभी भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में हैं या फिर पूरे सभी लोग हैं, अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं हमेशा रोता हूँ। ये सारी चीज़ें याद आती हैं और पर अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ धीरे-धीरे। जी। So, so now tell us a little bit about Organ India. What do you do? Suppose someone has to, reach out to you. अगर आपके पास आना चाहते हैं, information चाहिए, आपकी 24/7 हेल्पलाइन भी है जो आप लोग ही उठाते हैं. तो क्या करना चाहिए, कैसे करें? What is the procedure? तो आई मीन लोगों की अलग-अलग क्वेश्चंस होते हैं। अ लॉट ऑफ द टाइम इट्स हम अंगदाता कैसे बने? लाइक हाउ डू आई साइन अप? हाउ डू आई टेक द प्लेज? दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो हमारी Basically, वेबसाइट organ donation के लिए ऑर्गन reach डोनेशन out के लिए या एंड देन दे वांट टू नो कि अच्छा अब मैम ने साइन कर दिया, अब हमारे ऑर्गन डोनेशन होगा। तो देन वी हैव टू एक्सप्लेन कि नहीं, जस्ट बिकॉज यू हैव साइंड और आपको कार्ड मिल गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपके 100% ऑर्गन डोनेशंस होंगे, बिकॉज इट इज ओनली आफ्टर अ सर्टेन काइंड ऑफ डेथ, इट इज ओनली आफ्टर ब्रेन डेथ दैट योर ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड। Right. So then they're like, oh, ये इसका क्या मतलब हुआ? Then one has to explain what is brain death.
And only after brain death you can donate your organs. So most of us will not die of brain death. Most of us will die of various different things. So the small sample of people who will actually die of brain death, they are the only ones who can donate the organs after death. So अगर आप sign भी करेंगे organ donation हाँ. card, just very few of us who will sign yeah. it will Will have the actually privilege of privilege, giving our organs. Exactly. But let's talk about organ donation. ये बार-बार बात आती है कि not enough of people are even signing that card. And हमारी population 140 करोड़ है. How many people actually donate in India every year? So we have records going back to 2013 or so, when everyone started keeping records. Right. So it has gone up from around 200-300 donations. That means 200 people who died during that year, only 200 people actually donated their organs. खाली 200 So 200, I don't because 2013 के बारे में हाँ. आप बात कर रहे हैं. And then now it's 2023. So if you look at 2023 के figures, it is around 1100. So 1100 लोग 1100 people are giving Donating their organs. donating organs After death. for other people Yes. after death Yeah. in a country of 140 Yeah. crores. I don't know how many people die in India every year, but it must be. Yeah, so you calculate per million population, like what is your rate? Like across the world, you calculate the rate as per Somewhere million. I read it was 0.25. 0.8. Now it's Point, 0.8. अच्छा, 0.25 से 0.8. Yeah, that means not even 1% Not even in 10 lakh actually Yeah, end up lakhs. donating. So it's a So very you got low. 8,000 people per 10 lakh, right? No, it's 0.8. Huh? Yeah. Yeah. No, it's not even one per Yeah, 10 lakh. 8,000. It's less than one. So it's 0.8 per million population, very low. And if you look at countries like Spain, even UK, US, and all, Spain is very तो high. इसका कारण क्या है? Is it that we don't have institutional setups, or there is religious reasons why we don't donate, or awareness levels नहीं है? I know for a fact that the government is trying to create awareness levels. India is trying to create awareness levels. I believe you took Rahul also for the World Transplant Games in Australia, and he won a medal also. Yes. आपको किसमें मेडल मिला था? मुझे डिस्कस थ्रो में मेडल मिला था सर, एथलेटिक्स में. बताइए. जी. What a transformation from 2018 when he had a heart transplant to going and winning. And I believe the competition is quite intense. It's there as very well. intense, yes. Right. True. So talk about that. Talk about what are the problems that people are not coming for organ donation. Okay, so it's both, like you said. One is, of course, awareness levels are still very low. Like a lot of people say, "Acha, what does this mean?" It's not that people don't want to donate, they will. The concept of daan is big in India, and people will and the problem is they don't have the information available to them. Also, people of our generation, when you initially think of organ donation, it always takes a negative connotation, right? Because we've all seen those movies where there's organ trafficking, and somebody's got a cut and they're behosh and they get up and whatever they get. So we have that notion of negativity. So the past 10 years, we're trying to push it into saying that, okay, organ donation happens. Its government overlooks it. It's a wonderful way of donating living beyond your life. And then people like Rahul come into the picture because you can tell them that, look, he was, on his deathbed. He got a life-saving organ transplant. And He's an ambassador. Yes, he's an ambassador for organ donation. Right. And so positive, and every time I meet him, I'm amazed because the positivity in him is very infectious. So basically, it's lack of awareness, and also at the institutional level. Sure, I mean, now we have a good amount of hospitals that are doing transplants. Not enough government hospitals, so it But kind of puts why? out Because reach also. most of India gets treated at government hospitals, Yeah. right? Why isn't the government proactive about it to the extent that is needed? Of course, you have AIMS. It has shown the way. I think maybe the first transplant Heart transplant happened at transplant, AIMS, took place, and that was many, many years back. 94. So what is the hesitancy there? I think transplants are costly. Right. They are expensive. We didn't initially have enough trained surgeons. Even now, all the surgeons who got trained are coming back from
UK, US, wherever they'd gone, and now they're training, surgeons over here. So it is growing. The hope is that we have one day enough doctors and transplant surgeons who will then go to government hospitals and start working there. But it's expensive, so So it's the whole ecosystem, the Yeah. institutionalization, and right. putting in systems for organ transplants. Because organ transplants in certain areas are doing well, right? In India, kidney transplants, so it's become pretty common now. Right. You have liver transplants, which are happening. So there are certain areas where we've, kind of got to act together. Right. Kidney is quite common. I think a lot of hospitals are doing kidney transplant. Heart is more restricted. Liver also is being done quite a lot. The costs are high in private hospitals. I think What are the costs? like for a kidney, it would be between 5 to 10 lakhs. Right. Maybe cheaper and some, more expensive and some. Yeah. Liver is expensive. It's about 25 to 30 lakhs. What about a heart transplant? Heart at the Because time. somewhere 80 to 90% of the heart transplants take place in private Right, hospitals. and it's So- expensive. It's, I think at the time Mrs. Parashar had it done, it was around 15 to 20. Right. But then it's not just it's outlier, it's the kidney and it's the medication you have to take for the rest of your life, like Right. immunosuppression. Right. So- So इसके that's a good transition. जब आपका ऑपरेशन हो गया, जी। रिकवरी में कितना टाइम लगा? जैसा कि सर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा मुझे पहले से ही समझा दिया गया था कि 1 साल से पहले तो घर से बाहर नहीं निकलना है और लगभग 3 से 4 महीने में आप अच्छा फ़ील करेंगे और पर लेकिन अपने घर पे ही रहना है, अपने रूम में ही रहना 6 महीने तक, तो रूम के बाहर भी 6 महीने के बाद निकलना है। जिससे इन्फेक्शन ना हुआ। हाँ, जी फंगल इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस ही रहते हैं। हार्ट में और लीवर में तो है काफ़ी, फंगल इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। तो बाहर नहीं जा सकते थे आप, आइसोलेटेड रहना है, जी। ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स को भी नहीं मिलना। जी, जी, जी। खाना आपका स्पेशल होएगा। जी, जी। मेरा स्पेशल क्या है, सब पूरी फैमिली ने मेरा ही खाना स्टार्ट कर दिया था, जैसा मैं खाता था। वो मुझे अच्छा फ़ील कराने के लिए करते थे या फिर सबका मन नहीं था खाना खाने का, ऐसा हो सकता है। और खाना क्या सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर एक तो क्या एनिमल्स नहीं रख सकते हैं, पेट डॉग नहीं रख सकते हैं, जैसे कि पिजन वगैरह होते हैं, उस वाले एरिया में नहीं रहना है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, मधुमक्खी ना काट ले, शायद ऐसा सब कुछ है सर। सब कुछ सभी। आपको बहुत ध्यान रखना। हाँ, और एक्चुअली क्या है, जैसे कि डॉग बाइट कर लेता है या मंकी, तो उसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट में, जैसा कि मैंने सुना, मेरा तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, मैं तो वैसे बताऊँगा सर कि उसमें रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। उसमें इतना रिजेक्शन हो जाएगा, तुरंत हार्ट स्टॉप, रियली? ऐसा है सर। Yeah, you have to stay away from animals. जी। That's, that. उनसे बच के रहना होता है और इसलिए घर पे रहने 1 साल तक आपको लगभग लग गया। सर नॉर्मल लाइफ। मेरे अंदर तो सर इतनी इच्छा शक्ति थी ठीक होने की, मेरे डॉक्टर इतने सपोर्टिव थे कि मैं 6 मंथ के बाद तो पुशअप्स वगैरह करता था, सब कुछ करता, रनिंग करता था और मेरे डॉक्टर्स के सजेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने एक पार्क जाता था जिसमें कि कम लोग होते थे और मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि सपोर्ट करते थे, रनिंग में सपोर्ट करते थे, बाकी मुझे घर से लेके जाते थे और छोड़ के जाते थे। जी। ऐसा सब कुछ था और मैंने फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको बहुत सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया है, मैं मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है और सर मैंने 9 मंथ कंप्लीट हुए थे और मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। जी, डॉक्टर के सजेशन से और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैं उस टाइम सम्राट होटल में काम करता था। जी। जी, एज़ ए शेफ़ और मैंने एडवाइस ली थी सर से कि डॉक्टर से अपने कि मैं अपना किचन का काम है सर, स्मोक होगा, सब कुछ होगा। उन्होंने बोला कुछ मत करो, एक मास्क लगा के रखो, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन होती है फ़ोन करो और आ जाओ, बस। कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन आपके डॉक्टर साहब का क्या नाम है? वो पूछना ही भूल गया आपसे, जिसकी भी बहुत बड़ी टीम होएगी। मेरे डॉक्टर ने मुझे इतना पॉजिटिव बनाया है कि ज़मीन से मतलब मैं रहता नहीं, इस लाइफ में नहीं होता अगर वो नहीं होते तो। मेरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संदीप सेठ और जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप सेठ। जी, प्रोफेसर हैं एम्स हॉस्पिटल में जी। और उन्हीं ने इंस्पायर किया। गेम्स के लिए भी उन्होंने कितने करे होंगे अभी तक? हाँ। एक्चुअली सर वो कंसल्टेंट हैं। जी। वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आपकी जी, सर्जरी के जी। लिए आए थे। जी। एक चीज़ और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो डॉक्टर्स अलग होते हैं और फिजिशियन अलग होते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद सर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से आप मिल नहीं पाओगे उसके बाद, कभी रेयर चांसेस होगा कभी मिल पाए। आपकी जो रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट हाँ, They will take over. will take over the- वही ऑपरेट करते हैं और एक तरीके से
सारा गाइड वही करते हैं और एक तरीके से फैमिली जैसा फील होता है सर अब अभी। तो काफी साल हो गए, जी। अब क्या अभी भी मेडिकेशन में? सर एक्चुअली मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी होंगी। अच्छा। जी, सभी को। No, that's why it's even expensive after your पूरी लाइफ सर चांसेस रहते हैं कि रिजेक्शन के, और रिजेक्शन बढ़ेगा तो फिर हमारी बॉडी सर कभी भी अदर ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही करती है। अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो फिर हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। जो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ये रहता है, इस वजह से इम्यून सप्रेशन खाना होता है और सर्वाइव करना होता है सर। ये है सर। और मेरा तो मेरी फैमिली का मेरा सर डॉक्टर से हमेशा ये क्वेश्चन रहा था। अब तो मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, अब मैं नहीं पूछता हूँ। मैंने पूछा सर कब तक दवाइयाँ खानी होंगी? मेरी दादी भी बोलती हैं, मम्मी भी बोलती हैं। मैंने यही सेम पूछ लिया सर से। सर ने बोला कि जब दवाई खाने से आप एकदम अच्छा फ़ील कर रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो, तो दवाई खाने में क्या प्रॉब्लम है? और विदाउट मेडिसिन अगर अगर आप दवाइयाँ नहीं खाओगे, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो दवाई खाना कोई बुरा नहीं है और बाकी सब अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहो। और आज सर टाइम ऐसा है कि कोई भी पेशेंट एकदम से हाँ नहीं बोलता कि हम ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हूँ, तो मेरे डॉक्टर अब मुझसे बात करवाते हैं या फिर मुझसे मिलवाते आप मोटिवेट करते हो लोगों हैं। जी, फैमिलीज को? मैंने 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मैं फिजिकली भी मिला हूँ और बाय कॉल भी। मेरे कहने से उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए हाँ बोला और अभी वो एकदम ठीक है। So, आप रोल मॉडल है ना? जी। आई थिंक वी नीड मोर पीपल लाइक यू। एक चीज़ और होती है सर, अगर आपका डॉक्टर आपको एक फैमिली की तरह रख रहे हैं, मुझे तो अपने बच्चे की तरह मानते हैं सर, तो एक पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। डर ही नहीं है सर किसी चीज़ का। मुझे पता है मेरे डॉक्टर हैं। मुझे ये भी डर नहीं है कि मतलब मैं गेम्स खेल रहा हूँ, क्योंकि सिनेमा में सब लोग ऑपरेट करते हैं सर, इनकी तरफ से भी काफ़ी हेल्प होता है। और एक तरीके से पॉजिटिवनेस इन्हीं लोगों की वजह से बनी हुई है। और बस सर यही कहना चाहूँगा। So, Sunena, tell me about this initiative of Organ India, about making, organ recipients participate in the world, different forums, including the world. Yes. So here we got to know about the World Transplant. Because one has heard a lot about Yeah. Paralympics, and Huh. that's Yeah. mainstream news these days. But about the World Transplant Games. Yeah, so World Transplant Games are for organ recipients and even living donors. So both can go. The idea behind the games is that you show everyone that life is healthy, it's fit after transplant, and that donating an organ is a wonderful thing. You can give life to somebody. If you meet an organ, like for example, if you met Rahul, you know he's had a heart transplant. But if you didn't know, you will think there is any problem, right? Because he's in his second life now. He's living his best life. So it's a celebration of life. So like Paralympics in the 90s or so, it was not an organized sport. Right now also, transplant sports hasn't come in under a national association or a federation, but hopefully that's going to be the way it is. And we got to know that there were these games from athletes, and they said, look, there's nobody in India who's taking them, training them, and kind of providing a proper way to go. So then we applied to the World Transplant Games Federation. There's a federation in the UK, and we applied and we became the member organization from India. So every country has one member organization, and they take the team to wherever the games are. Right. So the games we went to were in Perth in Australia in 23. And ban to gaye hum, managers. Then we were like, oh my God, now we have to take all these athletes. And the We have to train them. We have to get the funds for them. And suddenly we're like, hey, what have we done? But then slowly we partnered up with Manav Rachna University, which is in Faridabad. They have a fantastic sports center. And they came forward and they said, we will train the athletes at no cost. So it was fantastic. So how many people did you take? So we eventually took 32. That's a large. Yeah, it's a large. It was the largest contingent that had ever gone, and we had done 2 training camps before that. So this time we went trained Right. with proper t-shirts and gear and all of that, and then we went to Perth and we did a big halla over there. We were dancing and we were screaming, shouting, India, India, and everyone was like, wow. And we did really well. We got 35 medals over there. अब आप फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने सुना है। जी सर। और अब इस बार आप जर्मनी जाने की सोच रहे हैं।
ये सर जैसे कि मैं पहले बैडमिंटन खेलता था और बैडमिंटन में ही अपना फ्यूचर दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ। पर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा रहता है कि थोड़ा घबराहट सी रहती है, जिसकी वजह से बीपी हाई होना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी रहती है, पर लेकिन वो उस तरीके से फ़ील नहीं होता जैसा बाहर जाके होता है। प्रेशर ज़्यादा हाँ, प्रेशर थोड़ा-सा होता है, तो मैं अदर गेम्स के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे एथलेटिक्स में मैं लेके आया था मेडल, तो उसी में ही दूसरे गेम्स जैसे कि जैवलिन, आर्चरी के बारे में सोच रहा हूँ, पर लेकिन शायद विदाउट ट्रेनिंग लगभग 1 साल की ट्रेनिंग तो चाहिए। चाहिए। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे गेम्स पे अब मैं फ़ोकस करूँगा। चलिए ठीक है। So Sunena, tell us about brain death and how do you go and retrieve an organ? Even though you have all the permissions, suppose the person was a donor, but you still need permissions from the family. How does that happen? Typically, almost always, the organ is always retrieved from someone who is brain dead, right? So, what is brain death? It means you have a very severe injury to your head, and you're actually it's called brain stem death. So, then you have a brain stem, and that completely dies because of the injury to your brain. By law, there are 5 tests several tests, 5 to 6 tests that the hospital has to do. These tests are not done by just one doctor. They're done by a panel of 4 doctors who have been pre-approved by the government. So to make it all very clear, Foolproof, and so that foolproof. there's Yeah, no, correct. So one of those doctors will be the MS of the hospital. One of them will be the treating physician. One of them will most probably be a neurosurgeon, a neurologist or neurosurgeon, and one will be an intensivist. All right. So all 4 of them will come together. When somebody is brought into the hospital with a really bad brain injury, they are put on a ventilator, right? They will work on you. Maybe you don't need any surgery. Maybe it's okay with medication. Maybe you need surgery, then you become okay. Right. Or a lot of the times it happens when the injury is really severe that the person's brain stem dies. They do the tests, and by law in India, you have to do the tests twice to make it even more foolproof. right. So they will do the test. All 4 doctors will come at whatever time one of the doctors or the Because nodal time officer. of the Yeah, essence and so is 4 doctors will come. They will do the tests. If they find this person's is brainstem dead, they will sign on the paper. Right now, by law, you have to repeat the test after 6 hours. You have to leave a gap of 6 hours. Whether you do it after 6 or 10 or 12 doesn't matter. Again, those doctors will come back, and again they will do all the tests. So these must be international practices, right? That Yeah. or do we have No, everyone has their own Everybody has practice. their own. Ours is that you have to do 2 tests, Right. right? And the second one will be brainstem dead. And at the time they sign it, that's when they have declared the person dead. Right. Right. So then in the meantime, the counselors and all would have been talking to the family to tell them that, okay, look, they are on a ventilator, they're on artificial life support. That's why you can see the breathing happening and the organs are still okay. But they will never regain consciousness and they will never breathe on their own again. Right. All right. So they are, in effect, they pass. So as soon as they're taken off the ventilator, They will. they pass it. Right. So then the family has to be explained. Now, the family at that point has never been told about this. They have no clue what is brain death. They have no clue what is organ donation. A lot of the times, the people who end up there are young people. Yeah. They are road accidents on a motorcycle or in a car or whatever. It doesn't have to be young, but they usually are. It's a huge shock. It's a massive tragedy within the Yeah. family. I mean, And at that families time, want to deal with yeah, a at lot of that things. time to suddenly say very tough. So I have a lot of respect for transplant coordinators, counselors in the hospitals who actually have to go Very explain difficult to job. the family Right. and then suggest that, look, one of the things you can do is to donate the organs because for a while they will be functioning because of the artificial life support. So then the family has to decide. If they say no, it's a no, and everybody backs away. If they, like in Rahul's case, I think they must have said yes initially, then backed out. Then You mentioned that. right, so maybe the counselors go one more time and suggest that Right. are you sure or do you want? So it's a difficult situation. Not only in India, I guess it's That a was global very- situation. It's a very yeah, difficult, very difficult. to be to agree to give organs of your loved one who just passed, Right. and it has to be done within hours. Right. What is the how many people are on waiting to get organs, and
I don't know if I'm saying it crudely, but the demand supply gap in terms of Yeah. how many people need it and how many are actually available. Right. in the- So the estimation is that there will be at any point of time 5 lakh people across the country who need an organ. Most of it is kidney because a lot of diabetes in India, so kidneys get affected, and then liver, and then heart, But and you so think, on and so isn't that more to do with your immediate family? That you can get it from a living donor, Right. but the still living donation still means you're taking a perfectly healthy person and taking out an organ from their body, right? So in India, let's say in 2023, there were around 18,000 transplants. Out of that, only 3,000 approximately were from deceased donors. All right, the rest are all living donations. Right. So that's not a very healthy, program. It should be the other way around. Like Right. deceased donation should be higher and living, lesser. That would be a good program to have. Right. So our goal is that we increase the deceased donations to, reach out to more people, strengthen our systems, whether it's within the institution or whether it's awareness or whatever, and try and get that number high so that living people don't have to then, So, what are some of the websites that somebody can go to when they are looking for organ, both donation as well as when they're looking for organs? So, I believe you have. Yeah, so they can call our helpline number, or we obviously cannot get the organ for them, Right. but we can, suggest to them. We have online resources on our website, which is like a transplant guide where you can see, And you have all that information, सारी information Organ India के बारे में हम लोग इस आपको वीडियो पॉडकास्ट में देंगे. ठीक है. And you can call, Noto has a helpline number. We have a helpline number. If you want to Not pledge, is of course the National Organ the- and Tissue Transplant Organization. So they have a helpline number. They have their website also. We have our website, which we give you a registration number from Noto as well. So you can go to either website and you can pledge. But the most important thing is you have to tell your family, right. right? If you can have a card, it's not illegal. It's not legally तो recognized. ड्राइविंग लाइसेंस में भी हाँ. पूछते हैं आपको कि आपको ऑर्गन डोनेशन करना है कि नहीं. Yeah, तो but किसी को पता ही नहीं है उसमें कि what does that even mean? They have to be told, right? So So awareness. awareness is very important. So if you have a card, you don't have a card, it doesn't matter. You can still be an organ donor. You just have to tell your family. And your family is to then agree on. And then, but once you tell them, why wouldn't they, Why So, so that's basically it. So राहुल आप रिसिपेंट हैं किसी के हार्ट के जी और आपकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में? अ, मैं तो सर अभी जो लाइफ जी रहा हूँ या फिर जो भी गेम्स खेल रहा हूँ, मैं उसी पर्सन के लिए खेल रहा हूँ या उसी के लिए मेडल लेके आता हूँ जिसने मुझे हार्ट दिए हैं। और मैं अपने उसी बदले हुए हार्ट की दिल की गहराइयों से उसकी फैमिली का और उसका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि मुझे नया जीवन मिला है, ऐसी ऑर्गन डोनेशन लोगों को करना चाहिए। औरों को भी, और भी लिस्ट में लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको भी नई ज़िंदगी मिलेगी मेरी तरह। और जैसे मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, वो भी अच्छा जीवन जिएगी। Well, thank you so much, Rahul. Thank you so much, Abai. You're an inspiration and you're a role model for so many people. Thank you so much. Thank you, Sunena, and telling us about Organ India and the great work that you're doing. And thank you for watching Health Mantra. I'll see you again with another episode very soon. ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।